हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point, राइट? आपको क्या करना है, अपने ग्राफिक को वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेस करना है विद द रेफरेंस ऑफ एंकर पॉइंट। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज अलाइनमेंट, राइट? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, Krisha wants to make a flow chart for his program in a Word document. Which option should she use to accomplish this task? ये हमने डिस्कस किया था फ्लो चार्ट से रिलेटेड, जब हम लोग ड्राइंग एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आंसर इज ड्राइंग एंड शेप्स, राइट? थर्ड क्वेश्चन, फातिमा हैज इंसर्टेड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट but she wants to cut off a part. Cut off a part means crop the picture. Cut off part means crop the picture. Answer is C. Next, fourth question. Amrita is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invitation to many people with different address? Yes. हमने लास्ट वीडियो में इसे डिस्कस किया था। आंसर इज मेल मर्ज, राइट? Next, fifth question. A filling the blanks is a model that you use to create other document. Yes, answer is template. Template is a model or basic structure by which you can change the appearance, or you can you can easily, quickly and easily create other document, right? Question 6. When you apply a filling the blanks, you apply a group of formatting. Group of formatting, what is we call? Group of formatting is style. Yes, answer is style, right? Next, seventh question. Style in a text document affects selected text within a paragraph, such as the font, size of text, bold and italic format within a paragraph. So answer is character style, right? Next one is, filling the blanks is particularly useful when creating a watermark. Yes, watermark create करने के लिए आप किसका use करते हैं? Transparency, right? Next question. Filling the blanks include font alignment, border, background, number formats, for example, currency, date, number, and cell protection in a document. Then answer is cell style. ये किससे related है definition? Cell style से, right? Next question. Control how graphics are stacked upon. Stacked upon. Stacked means जैसे आप अपनी बुक्स को रखते हैं एक के ऊपर एक, तो वही स्टैक होता है। ठीक है, तो स्टैक मीन्स एक के ऊपर एक पिक्चर्स को रखना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं उसे? अरेंजमेंट। आंसर इज अरेंजमेंट, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all paragraphs and change the font of all titles in the book. Which feature she should use to make the task easy? तो कौन सा टास्क हो? उसको पैराग्राफ के इंडेंटेशन को चेंज करना है, राइट? और उसके फॉन्ट को, टाइटल्स का जो फॉन्ट है उसे चेंज करना है, तो किसका यूज करेगी वो? स्टाइल का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th. In a word processor, filling the blanks option is selected for a scaled resizing of an image. Yes. आप क्या करेंगे? इमेज को, उसका स्केल जो है वो रिसाइज करेंगे। देन आंसर इज कीप रेशियो, राइट? हमने दो तरीके के इमेज में पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, कीप इमेज स्केल एंड कीप इमेज साइज। तो कीप इमेज स्केल इज रिलेटेड टू कीप रेशियो, right? Next, 13 question. It is reference point for the graphics which is created while positioning any image.
This point could be the page frame where the object is either a paragraph or even a character. The answer is reference point क्या होगा किसी भी पिक्चर का? Anchoring. Yes, anchoring is the right answer. Now 14th question. स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. स्टेटमेंट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ डिफॉल्ट टेम्पलेट. नो, ये तो यहीं पे गलत हो गई स्टेटमेंट, है ना. तो आंसर इज फॉल्स. राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन ए वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट इवेलुएट, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. कितनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं? 10. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट? इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज कौन सा यूज में आता है? शार्पन. ये भी डिस्कस किया था हमने. राइट. ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है. लास्ट ईयर का अभी नहीं, ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था आपके 2022-23 में आया था ये. 16, 10, 17 क्वेश्चन. Which of the following is not used when creating a mail merge in a document? आप क्या यूज़ नहीं करते हैं जब आप मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज आप क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट में? स्प्रेडशीट का यूज़ होता है. आपने लेबल्स क्रिएट किए थे तो देखा था ना स्प्रेडशीट को. देन डॉक्यूमेंट का तो यूज़ होता ही है क्योंकि हम उसके अंदर लेटर टाइप करते हैं. पेंट का यूज़ नहीं होता है. डेटाबेस का तो यूज़ होता है क्योंकि हम एड्रेस लिस्ट को स्टोर करते हैं. तो आंसर इज पेंट. Now next question 18. Which mode is used to apply a style to many different area of a document quickly without going back to style and formatting window writer? ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था. आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज fill format mode. Right? Now next question. स्टेट एनी टू पर्पज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन अ डॉक्यूमेंट. क्या पर्पज होता है टेम्पलेट को यूज करने का? फर्स्ट, इट सेव आवर टाइम. सेकेंड, इट क्रिएट इजीली एंड क्विकली. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग. टेक्स्ट रैपिंग की क्या यूटिलिटी है? फर्स्ट आपकी यूटिलिटी क्या है कि आप पिक्चर के साथ टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं. राइट. सेकंड, आप पिक्चर के ऊपर भी राइट कर सकते हैं टेक्स्ट को. ठीक है. तो इस तरीके से आप यूटिलिटी टेक्स्ट रैपिंग की लिख सकते हैं. इलेबरेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल. आपको 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल के बारे में बताना है. फर्स्ट आपकी पैराग्राफ स्टाइल है. सेकंड वन इज कैरेक्टर स्टाइल. थर्ड वन इज फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल. तो इस तरीके से आप स्टाइल को इलेबरेट कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज Tanmay is a class 10th student. He has learned mail merge option of a word processor in his computer period, but he confused with few terms used to merge document. Explain the. आपको क्या करना है? इन सभी options को explain करना है. First is merge field. Second one is data source. Third one is main document. merge field क्या है आपका? जिसके अंदर आप लोग एड्रेस लिस्ट, जिसमें आप क्या देते हैं? नेम देते हैं. ठीक है. जिसको मर्ज करते हैं, नेम होता है उसका, फर्स्ट नेम होता है, एड्रेस होता है, सिटी होता है, फोन नंबर होता है. तो उसे आप लेटर के साथ मर्ज करते हैं ना, तो ये वही मर्ज फील्ड है. सेकंड है डेटा सोर्स, जिसमें आपकी एड्रेस लिस्ट स्टोर होती है. मेन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका लेटर टाइप होता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 2 टाइप्स ऑफ डेटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड. फर्स्ट है आपका लेटर, सेकंड है आपका लेबल. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे. ठीक है. तो इस पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे शेयर कर दूंगी. आप इस पीडीएफ को उस लिंक से ले सकते हैं. तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, बाय बाय.